Assalamu alaikum, adab, namaste, very good afternoon to all of you from Ahmedabad. We are in Gujarat, the bus team in Ahmedabad, a beautiful historic city. I get nostalgic about certain cities and Ahmedabad is one of them. And the reason is the city is full of history, full of architecture, beautiful people, beautiful places. And especially અમદાવાદની જે પેલી પોળો છે ને એમાં આપણે ફરવા જેવું છે એ ગલીઓમાં અમદાવાદના ઇતિહાસને આપણે શોધી શકીએ, અમદાવાદના ભૂતકાળને શોધી શકીએ અને અમદાવાદના વારસાને શોધી શકીએ. પરંતુ આજે ગુજરાત ટુડે અમદાવાદમાં એક બહુ સરસ વાર્ષિક પ્રોગ્રામ હતો. એને કહેવાય છે કે વિચાર ગોષ્ઠી. તે વિચાર ગોષ્ઠીમાં અમને આમંત્રણ આપ્યું અમારા ઉસ્તાદ, અમારા ગુરુજી અને ગુજરાત ટુડેના જે પાયાના સ્તંભ છે અજીત સાહેબ અને સોહેલભાઈ એમની ટીમે. એટલે અમે દોડતા ને દોડતા કાલે અમારું લોન્ચ કમ્પ્લીટ કરી અને અમદાવાદ આવ્યા. અને અમદાવાદમાં અમારી પ્રથમ મુલાકાત થઈ મહેમાનોની સાથે. અને એ મહેમાનોમાં એક ચહેરો થોડો ખામોશ બેઠો હતો અને હું થોડોક વાંચતો હતો, એમને કોશિશ કરતો હતો, પણ અમારી મોટાભાગની વાતચીત ચીફ જસ્ટિસ ગોખલે સાહેબ સાથે થતી રહી ને એમની બાજુમાં એક ચહેરો બહુ ખામોશ બેઠો હતો. અને જયારે કોઈ ચહેરો ખામોશ બેઠો હોય ને ત્યારે મને સમંદર યાદ આવે છે કે સમંદર ખામોશ લાગે છે, પરંતુ જયારે ઉછાળા મારે છે ને સાહેબ ત્યારે દુનિયાનો તખતો પલટી નાખે છે. એટલે બન્યું કે પછી અમારો પ્રોગ્રામ શરૂ થયો અને પ્રોગ્રામ શરૂ થયો એટલે એક સ્પીકર ઇન્ટ્રોડક્શન થયા અને જેમનું નામ છે સોહિતભાઈ મિશ્રા. અને વધુ એમના પરિચયમાં એમઓસીએ કઈ ના કહ્યું અને પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે કેમ કઈ ના કહ્યું, કારણ કે सोहित मिश्रा भाई જે स्पीच આપી, જે प्रवचन આપ્યું, उन्होंने जो हमारे सामने अपने विचार पेश किए, and immediately I asked my producer that it would be wonderful to have 5-10 minutes if we can talk to Sohit ji and find out about his background, about he's one of the most reputable, one of the most respected, dynamic, rising young journalists. Rather than me going a little bit on and on about himself, I would request Sohit ji, first of all, on behalf of B-Bus channel, sir, welcome and thank you very much for agreeing to talk to us instantly. And this trust, we respect that and we appreciate that. So can you briefly tell us about yourself, please, to our viewers? So first of all, thank you so much for having me. It's a pleasure as well as it's an honor to be on your channel on B-Bus. I've been hearing a lot. I've been reading a lot about your channel and starting something over here. It's very exciting and it is the need of the hour. Let me tell you, this is the time when we need unbiased, true journalism. I think so this channel is going to deliver that. So first of all, congratulations to all of you and all the best wishes, because we need more and more good voices as well as real voices on the ground. And I think so your channel is working for that. Hello everyone. My name is Sohit Mishra. I'm a journalist based in Mumbai. I used to work in a TV channel called as NDTV, the original NDTV, which belonged to Dr. Pranay Roy. I was the Mumbai bureau chief of NDTV and I used to handle Maharashtra, Gujarat and Goa over there. Things changed in the channel. Then I started my own YouTube channel. It wasn't a plan, but all of a sudden we started a channel in 2022 with the use of a mobile phone. We are continuing to do that. And in the last 2 years on my channel, which is on my own name, Sohit Mishra Official, we have more than 5.5 lakh subscribers on YouTube. And we continue to do a lot of ground reports. We give a lot of opinion on issues which are very much required. And I think so that is where a big part of media lacks, and that is what we are trying to achieve. So thank you so much for having me on your channel. Absolutely. Sohit ji, it would be interesting, just to going back to the question which I asked, कौन से पॉइंट के ऊपर आपने ये निर्णय लिया कि आपको एक पत्रकार बनना है, आपको मीडिया के साथ जोड़ना है, और ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको इस फील्ड में खींच लाई? और अभी मैंने जो आपकी स्पीच सुनी उसमें एक पैशन था, इमोशन था, एक कमिटमेंट था, एक सीरियसनेस थी और आपके पास एक विजन भी है. तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर आपने कहा कि नहीं, मुझे पत्रकार बन के एक आवाज बनना है समाज के लिए और इस देश के लिए? तो उसके लिए मेरे बैकग्राउंड पर जाना होगा. मेरा सरनेम मिश्रा है एंड मैं मुंबई में रहता था. तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ महाराष्ट्रियन. मेरे दादा जो हैं वो यूपी से आए थे और यहाँ पर रहे थे. और जिस इलाके में हम रहते थे वो एक इंडस्ट्रियल एस्टेट था जहाँ पे उन्होंने चाय की दुकान शुरू की. और असली में चाय बेचते थे, कुछ फर्जी वाले लोग नहीं, असली चाय वाले थे वो. और वहां पर फिर वो उस शॉप को मेरे पिताजी ने भी चलाया. हम बचपन से देखते थे, दुकान में बैठते थे और वहां पर हमने देखा कि लोग अखबारों पर बातचीत कर रहे हैं. जितनी बातचीत टीवी पर नहीं होती है या जितनी बातचीत हमारे लोकसभा में नहीं होती, उससे ज्यादा चर्चा जो है किसी चाय के दुकान पर होती है. सो दैट बिकेम द फर्स्ट अट्रैक्शन. ओके, व्हाई आर पीपल टॉकिंग अबाउट द सिविक इश्यूज, व्हाई आर पीपल टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियंस. और उनका सोर्स क्या होता था? अखबार या फिर उस समय टेलीविजन. सो आई अंडरस्टूड
at that time I was in school. I think so. I was in 5th or 6th standard. Let me tell you, I was in 5th, 6th standard when I decided that okay, I want to be a journalist. Wow. और स्पेशली उत्तर भारतीय घर में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आधे से ज्यादा समय जो उत्तर भारतीय पिता होते हैं वो सिर्फ न्यूज चैनल लगाकर बैठते हैं हिंदी वाला. तो मैं बहुत सारे देखता भी था और आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ इट. क्योंकि आपने यहाँ पर बात किया, मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के पास में अगर बैठने का मौका मिल रहा है तो इतनी ताकत जो है वो इस मीडिया फील्ड में मौजूद है अभी भी. और इसलिए मुझे लगा कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें जाना चाहिए. फिर जैसे जैसे बड़े होते गए हमने एनडीटीवी देखना शुरू किया. तब रवीश की रिपोर्ट नाम की एक शो आता था, रवीश कुमार करते थे. रवीश कुमार जी. तो उनके शो का ही नाम था रवीश की रिपोर्ट. जहां पर वो गली नुक्कड़ों में जाकर ऐसे स्टोरीज उठाते थे जो लोगों के मुद्दे होते थे, जो आमतौर पर अब भी टीवी से गायब है. जो टीवी पर आप मुद्दे देखते हैं और जो हम रोजाना लाइफ में बात करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. तो रवीश की रिपोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की. प्रवासी मजदूर दूसरे देश में कैसे रह रहे हैं, दिल्ली में आकर बिहार के लोग जो मजदूरी करते हैं उनके घर की कहानी, या फिर दिल्ली का धारावी, ऐसे जो उनके एपिसोड हैं वो पागल कर देने वाले एपिसोड्स थे. तो उसके बाद क्या होता है, एक बार जब आपका दिमाग का ताला खुलना शुरू होता है तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लोगों की कहानियां बता सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं. और फिर मैंने मेरी पढ़ाई की. आई डिड माई बैचलर्स ऑफ मास मीडिया इन जर्नलिज्म, देन आई ऑल्सो डिड माई मास्टर्स. दोनों मुंबई से किया, एक सोमाया कॉलेज, एक केसी कॉलेज. और उसके बाद आई ज्वाइंड एनडीटीवी. मेरी खुशकिस्मत भी थी कि उस समय वहां पर ओपनिंग था, मुझे जॉब मिल गया. और मैंने अब तक सिर्फ एक ही चैनल में काम किया था, वो था एनडीटीवी. और वहां पे लगातार ऐसे मुद्दे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स होते थे. जब मैंने ज्वाइन किया था तब टीवी बदल चुकी थी. टीवी में तब केवल डिबेट्स पर फोकस होता था या फिर हिंदू मुस्लिम तनाव वाले स्टोरीज जिस पर टीआरपी आए उस पर होता था. उस समय हमने ऐसे स्टोरीज किए जो महाराष्ट्र के गांव के थे, जहां पर पानी नहीं है, वो वाले स्टोरीज किए. किसानों की जो आत्महत्या हो रही है वो वाले स्टोरीज किए. कोरोना के समय मैं आपको बताऊं, जो मजदूर पैदल चलकर जा रहे थे, 2 किस्म की टीवी चैनल्स होते थे उस समय. एक टीवी चैनल वो था जिन्होंने कोरोना के समय हॉस्पिटल्स पर सवाल नहीं उठाया, हमारी जो मेडिकल प्रिपेयर्डनेस नहीं थी उस पर सवाल नहीं उठाया, बट तबलीगी जमात को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया. एक टीवी चैनल ऐसा था जो कोरोना का समय, उनको पता है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उन्होंने प्रवासी मजदूरों के जो चलकर जा रहे थे उस पर बातचीत न करते हुए एंकर और रिपोर्टर अंताक्षरी खेल रहे थे ऑन टीवी. और तीसरा एक चैनल था जो बता रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, उसका खून हुआ है. ये सेंसेशनलाइज्म एक तरफ था, एक तरफ हम लोग जब थे, और मैं जब हम कहते हैं तो एनडीटीवी के जितने उस समय के रिपोर्टर्स थे वो लोगों के साथ जमीन पर चल रहे थे. सर मैं आपको बताऊं, ये वो समय था जब मैंने 2-2 साल के बच्चों को 15 दिन पहले बच्चे को जन्म देने वाली माँ को 70-70, 80-80 किलोमीटर पैदल चलते हुए देखा. ये वो मुद्दे थे जिसके ऊपर लोगों को बात करना चाहिए था, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा था. और आप जब एक ऐसे चैनल में थे जहां पर आप इन्हें प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हमने ऐसे जब महिलाओं के ऊपर स्टोरीज की, उसके बाद 15 मिनट के अंदर मुझे वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोन आता है और वो एक एम्बुलेंस भेजते हैं ताकि वो 15 दिन का बच्चा और उसकी माँ जो 40 डिग्री सेल्सियस में पैदल चल रही थी वो अपने घर जा सके. तो जब ऐसी चीजें होती हैं यू फील एम्पावर्ड. और जब मैंने पढ़ाई भी की, इट्स नॉट लाइक आई कम फ्रॉम अ ग्रेट बैकग्राउंड. जैसे कि मैंने कहा, पिताजी और दादाजी चाय बेचते थे, तो आप समझ ही सकते हैं कि इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं होती है. लेकिन ये एक फील्ड ऐसे है कि अगर आप काम करते रहें तो आपको पहचान भी मिलती है, लोग भी मिलते हैं, प्यार भी मिलता है. और जब आप लोगों के मुद्दे उठाते हैं और वो काम होता है तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो वो सेटिस्फैक्शन मुझे लगता है और किसी फील्ड में नहीं है जो यहाँ पे है, जहां पे आप एक तरीके से, मैंने वकालत की पढ़ाई कभी नहीं की है, लेकिन आई फील दैट जर्नलिस्ट आर द एडवोकेट ऑफ द पीपल एंड वी आर सपोज टू टेक द केसेस ऑफ पीपल एंड ब्रिंग इट इन अटेंशन टू दोज हु आर इन पावर. तो वो वाला जो काम है वो यहाँ पर करने मिलता है, जिसका बहुत सेटिस्फैक्शन है. क्या बात है, क्या बात है. आप जहां से चले थे और जहां आके रुके हैं, अभी भी हम देख सकते हैं आप बहुत आगे जा सकते हैं. सर, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे हमारे व्यूअर्स के लिए पूछना है कि जो हमारी रिसर्च है बीबस की, हमारी लंदन बेस्ड चैनल है, हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं ईस्टर्न यूरोप में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में, हिंदुस्तान हम लोग आते हैं. तो पिछले 5-10 साल में खास तौर पे कुछ हद तक इससे वेस्ट भी इफेक्ट हुआ है और इंडिया में तो इसके असरात हुए ही हैं कि जो मुख्य धारा के समाचार पत्र हैं और मुख्य धारा के टेलीविजन चैनल्स हैं उनमें विश्वसनीयता, एक जो ट्रस्ट होता है वो लोगों का कम होता जा रहा है. और उसी वजह से अब लोगों का रुझान
ये जो सोशल मीडिया में जो जेन्युइन लोग आते हैं, जैसा आपने बताया कि जो लोगों के मुद्दे उठाता है, जिनकी जो पत्रकारिता होती है वो साइंटिफिक होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, देश के बंधारण को लेकर, देश की जो एक विविधता होती है उसको लेकर, तो आप किस हद तक इस बात को मानते हैं कि मुख्य धारा की जो समूह माध्यम है, जिसमें टीवी हो या समाचार पत्र, लोगों का जो विश्वास उसमें कम होता जा रहा है, और जैसे आपकी यूट्यूब चैनल है, बी बस की, और दूसरे कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उसकी तरफ सोशल मीडिया का फॉलोइंग ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये लोगों का ट्रस्ट होना, ये बात में कुछ दम है, कुछ वजन है? जी बिल्कुल। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। दो तरह की खबरें अगर आपके सामने हैं, एक खबर यह है जहां पर टीवी पर यह खबर चली है, आप सर्च कर सकते हैं कि क्या एलियन गाय का दूध पीता है। एक खबर वो है, और दूसरी खबर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद के खराब एयर क्वालिटी की है। आपको किस खबर से इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको उस खबर से इम्पैक्ट पड़ेगा कि खराब हवा है, जिसका असर आप पर भी पड़ेगा, मुझ पर भी पड़ेगा। तो अब टीवी जो है उसे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने उसका नाम मेन स्ट्रीम नहीं मनी स्ट्रीम मीडिया रखा है कि पैसा फेंक तमाशा देख वाला एक हिसाब किताब हो चुका है कि जो पैसा देगा ये उसकी बात करेंगे, और कोई भी चीज जिम्मेदार वो आदमी नहीं होगा जो पैसा दे रहा है, उसे छोड़कर हर कोई हो जाएगा। जैसे कोरोना के लिए वायरस जिम्मेदार नहीं था, तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार थे या मुसलमान जिम्मेदार थे, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि ऐसा माहौल बने। आप समझ रहे हैं, मीडिया की सीरियसनेस को मीडिया के लोगों ने दिन रात खुद बर्बाद कर दिया है। नहीं तो जब मणिपुर जल रहा था, जब लद्दाख में मुद्दे उठ रहे थे, जब मुंबई के आसपास के मुद्दे उठ रहे थे, मुंबई में सर हर रोज, मैं मुंबई से आता हूं, ट्रेन से लटकते हुए 6 लोग गिर के मरते हैं रोज। मुंबई, महाराष्ट्र जो एक डेवलप्ड स्टेट है, वहां पर सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या होती है। ये वो बातें हैं जिसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करता, और ये वो मुद्दे हैं जब आप उठाओगे। क्योंकि मैं आपको मेरे एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि यार लोगों को केवल पॉलिटिकल मुद्दे पसंद है, लोगों को और कुछ पसंद नहीं है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार आप जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो तेंदुआ जो होता है, तेंदुआ जिसे हिंदी में कहते हैं, वो जो है वो बढ़ते जा रहे थे, और उन्होंने किसानों पर हमला करना शुरू किया, लोगों पर हमला करना शुरू किया। और मैंने जाकर बातचीत की, एक गांव में 12 दिन में 3 लोग मारे गए, और ये इतना बड़ा मुद्दा था कि तेंदुए की वजह से एक बाप ने उसकी इकलौती 5 साल की बेटी को अपने आंख के सामने मरते हुए देखा, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब हमने इस पर बातचीत की, मुझे लगा कि लोग नहीं देखेंगे, लेकिन इतने लोगों ने देखा, लोगों ने दुआएं दी, उसके परिवार वालों ने दुआएं दी। तो सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है। मुझे लगता है बी बस भी उसी के लिए यहाँ पर आया हुआ है कि सोशल मीडिया के जरिए जमीनी मुद्दे, लोगों के मुद्दे जो हैं, उसे कैसे आगे ले जाया जाए, लोगों में कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट लाया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग लाया जाए, लोग कैसे सवाल करें। 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो आप पढ़कर समझकर सवाल पूछ सकते हैं, या तो घोड़े की नाल लगाकर आप सड़क पर चल सकते हैं। अगर इंसान और जानवर में एक चीज का अंतर है तो वो दिमाग का है, और मुझे लगता है दिमाग का इस्तेमाल अगर करना है तो फिर सोशल मीडिया के ही जरिए भी हो सकता है। सो इट्स भाई, आखिरी सवाल ये है कि आप युवा पत्रकार हैं, मैंने थोड़ी सी एक झलक भी देखी, जिसको मैं कह सकता हूं कि पत्रकार तो है लेकिन एक विद्रोह, लेकिन मैं विद्रोह से बहुत ही हकारात्मक तरीके से यूज कर रहा हूं। मैंने उसमें देखा कि भारत की भावना छलकती देखी, क्योंकि आदमी तभी बोलता है, तभी उन मुद्दों को उठाता है जब उसके दिल में इसके बारे में दुख हो, दर्द हो, या जो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो भारत के प्रति आपको भी प्यार है, भारत के प्रति हमें भी प्यार है। 2 हम इंग्लैंड रहते हैं, 3 बार आते हैं और कोशिश करते हैं कि भारत की इमेज को, भारत की संस्कृति को, भारत के लोगों को, भारत की सरकारों को और भारत के सिस्टम को जितना भी अच्छा पॉजिटिव हम प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि इमेज बिल्डिंग हमें करनी पड़ती है। लेकिन अभी जो लोकशाही का माहौल है, उसमें आप मीडिया का जो फ्यूचर है वो क्या देख सकते हैं, और युवाओं के लिए आप क्या संदेशा लेके आए हैं? जी, पहली बात अगर हम बात करें तो जब मैं पढ़ाई भी कर रहा था जर्नलिज्म में, तो वहां पर जो मैंने पढ़ा है, जो पत्रकारों ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने लिखा है कि मीडिया का काम जो होता है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है। हमारा काम, जैसे कि मैंने कहा, मैं लोगों का एडवोकेट बनकर सरकार से सवाल पूछना होता है। तो आप अगर प्रो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, सरकार की वाहवाही करने का काम जो मीडिया टीवी का कर रहा है, उनको मैं बता दूं कि सरकार के पास खुद का एक डिपार्टमेंट होता है, जिनके पास सालाना के करोड़ों के बजट हमारे टैक्स पेयर से होते हैं। उनका काम है सरकार की वाहवाही करना और सरकार की बातें लोगों तक पहुंचाना। अगर वो काम मीडिया करने लग जाए तो उसकी विश्वसनीयता कम होती जाएगी, और वो विश्वसनीयता अभी कम होती हुई नजर आ रही है। कुछ समय पहले यही मीडिया के लोग थे जो हमें लाहौर, इस्लामाबाद भी हमने कैप्चर कर लिया था,
वो बता चुके थे, हम जीत चुके थे, वो सब चीजें हो चुकी थी, हम विश्व गुरु बन चुके थे, हमने गोबर से कैंसर का इलाज निकाल लिया था, हर एक चीज जो है हमारी मीडिया ने कर दिया था। लेकिन जब आप सच्चाई पर आते हैं कि यहाँ के अस्पतालों की परिस्थिति, मैं कहता हूं कि अगर मैं सवाल उठा रहा हूं, मेरा सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि मैं देश को क्रिटिसाइज करूं, मेरा सवाल उठाने का मतलब है कि आप इस सिस्टम को बेहतर कीजिए। आपको पैसे दिया गया है, आपको किसी ने नेता इसलिए नहीं बनाया कि आप फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर 4 बेरोजगार लोगों से अपने बैनर लगाकर अपने पीछे चलें। आपका काम है लोगों को रोजगार देना, आपका काम है इन सभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे सही करना, और अगर आप उसे करेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। और यही काम जो है वो टीवी मीडिया ने करना बंद कर दिया। वो एक जमाने में एक नेता ने कहा था जब इमरजेंसी का समय था कि द मीडिया वाज आस्क्ड टू बेंड एंड दे चोज टू क्रॉल। अब तो लेट चुके हैं, अब क्रॉल भी आप छोड़ दीजिए, वो लेट चुके हैं। इसलिए जो है आप देखेंगे कि जो विश्वसनीयता है वो कम हुई है। यूट्यूब हो या किसी भी तरह का सोशल मीडिया जो है वो अब इतना स्ट्रांग हो चुका है। अब आप लोगों ने जैसे सोशल मीडिया पर शुरू किया है, सच्चाई ये है कि अब लोगों को घर में टीवी के डिब्बे के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। उनके पास अपने पास एक स्क्रीन है, जेब में अपने इंफॉर्मेशन को लेकर घूम रहे हैं। तो आपकी एक्सेसिबिलिटी एक तो सब जगह पहुंच चुकी है, प्लस अब आपको करोड़ों रुपए खर्च कर बड़े बड़े स्टूडियो बनाकर या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों को लाकर उनकी वाहवाही करते हुए जर्नलिज्म करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ईमान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप लॉजिकल सवाल पूछेंगे, और जनता का सवाल अगर आप पूछेंगे तो इट डजेंट मैटर आपका नाम क्या है, आपका जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आप घर से बात कर रहे हो, आप मुंबई से बात कर रहे हो, आप गांव देहात से बात कर रहे हो, यहाँ पर कंटेंट इज द किंग। ये बात आपको समझने की जरूरत है। और युवाओं के लिए एक मैसेज, युवाओं के लिए मैसेज यही है, और ये सारे विश्व के युवाओं के लिए, युवाओं की बात करता हूँ। जी जी, सबसे पहला मैसेज तो यह है कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए। जो मैं समझ पा रहा हूं कि अभी का समय यह है कि कोई पढ़ना नहीं चाहता। जो ये 1 मिनट में या 60 वर्ड में आप किसी चीज को पढ़कर एक एनालाइज कर रहे हैं, तो अब जो आने वाली भविष्य है, आने वाला जो नस्ल है, उनमें इन डेप्थ नॉलेज की जो है कमी है। आप किसी भी टाइप पे, जैसे आप इंस्टाग्राम में किसी चीज को देखते हैं, आप 1 मिनट देखते हैं, आप रील बदल देते हैं, और आपका दिमाग भी अब वैसे ही काम करने लगा है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो किसी एक मुद्दे पर ठहर कर शांति से 5-10 मिनट भी बात नहीं कर पा रही है, रील की तरह वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्थिरता लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। पढ़ना, और किसी भी तरीके की अंधभक्ति, किसी के भी, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, अंधभक्ति ना होते हुए आपके पास एक नॉलेज, और सही नॉलेज, और लिबरल रहना या फिर क्रिटिकल रहना, ये बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आएगा, आप दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी बन सकते हो, और उसके बावजूद भी लोग आपको बेवकूफ ही कहेंगे अगर आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। क्या बात है, व्हाट fantastic interview from my point of view, full of energy, full of wisdom, full of enthusiasm. सोहित भाई के हम बहुत आभारी है कि इन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट थी और हम पे विश्वास करके 15-20 मिनट बात करके एक बहुत ही खूबसूरत सिनारियो हिंदुस्तान के हवाले, विश्व के हवाले से हमारे सामने रखा है। तो इनकी जो बातें हैं, इनकी जो एनर्जी है, इनका जो एंथुसियाज्म है, इनका जो विजन है, उसको देखकर एक शायरी मुझे याद आती है जो मैं सोहित भाई को सुपुर्द करना चाहता हूँ कि वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे, जलना पड़ा मुझे, जलना पड़ा मुझे। देयर इज अ होप, there is a future, as long as Sohit bhai said, we need to be careful, we need to be aware, we need to be enlightened citizen. अब આપણે એક જાગૃત થવાની જરૂર છે। જાગૃત જો વ્યક્તિ હોય તો એનાથી કુટુંબ જાગૃત રહે, સમાજ જાગૃત રહે, રાજ્ય જાગૃત રહે, દેશ જાગૃત રહે, અને એનાથી જ મતલબ કે નિર્માણ થઈ શકે। Keep watching Beavers, keep supporting Beavers. I'm grateful to Mohit Saab again, along with my producer Farooq bhai, CEO, founder. In our studio today, Aziz bhai is also here, so I'm slightly nervous that he's senior. I'm still conducting interview with Sohit bhai, and our fantastic magician, editor, and studio manager Sadaf bhai, who is working very, very hard back in the UK, because we record a lot of interviews during the daytime, and now this interview goes back to our studio. He does his magic touch and send it back to us, and then it relates to the 13 countries viewed by 1.5 million people. Thank you very much. Keep watching Beavers, keep supporting Beavers. Thank you very much. Imtiaz Patel, Vadiawala here. Thank you.